فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ تلنگانہ کے وزیر امارت و شورا کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی نے ریمارک کرتے ہوئے کہا کہ ریاست کی اصل اپوزیشن BRS پارٹی 4 جون کے بعد بند ہو جائے گی اور لوک سبھا انتخابات کے نتائج کے بعد ریاست کا سارا سیاسی منظر تبدیل ہو جائے گا۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے BRS کے سابق دور حکومت پر تنقید کی، یہ کہتے ہوئے کہ BRS کے دور حکومت میں شراب کی فروخت میں اضافے کے علاوہ کوئی ترقی نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ پچھلی حکومت نے شراب کی دکانات کے نام پر 2500 کروڑ روپے کمائے تھے۔ انہوں نے کہا کہ متحدہ آندھرا پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ YS راجشیکھر ریڈی کی طرح ریونت ریڈی بھی عوام کے لیے دستیاب رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ BRS کے رکن کونسل کویتا نے جو کام کیا ہے اس کی وجہ سے تلنگانہ کے عوام ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ سابق وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ موجودہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے خوفزدہ ہیں، اسی لیے وہ اسمبلی نہیں آ رہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ متحدہ ریاست میں کانگریس حکومت نے حیدرآباد میں بین الاقوامی ایئرپورٹ، آؤٹر رنگ روڈ اور دیگر بنیادی انفراسٹرکچر قائم کیے تھے، لیکن تلنگانہ کی تشکیل کے بعد چندرشیکھر راؤ حکومت نے ریاست میں کوئی ایک بڑا پروجیکٹ قائم نہیں کیا۔ 10 سال میں ریاست کو تباہ کر کے رکھ دیا گیا اور ریاست کو مقروض بنا دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہر سال 20,000 کروڑ روپے قرض کی ادائیگی پر خرچ ہو رہے۔ انہوں نے کہا کہ BRS دور حکومت میں عوام کی آزادی ختم کر کے رکھ دی گئی، دھرنا چوک بند کر دیا گیا۔ شہر حیدرآباد میں شب بارش ہوئی۔ بارش کا سلسلہ تقریباً نصف گھنٹے تک جاری رہا، جس کے سبب بعض سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا۔ شہر کے کئی علاقوں میں بجلی کی سپلائی بھی تقریباً 1 گھنٹے تک متاثر رہی۔ اسی دوران محکمہ موسمیات نے ریاست میں 3 دن تک بارش کی پیش قیاسی کی ہے۔ محکمہ موسمیات نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ خلیج بنگال میں بنے ہوا کے کم دباؤ کے نتیجے میں آئندہ 3 دن تک ریاست کے بیشتر مقامات پر اوسطاً یا شدید بارش کی پیش قیاسی کی گئی ہے۔ جے شنکر، بھوپال پلی، ملک، بھدرادری، کوتاگوڑم، کھمم، نلگنڈا، سوریا پیٹ، رنگاریڈی، حیدرآباد، میڈچل، ملکاجگری، سنگاریڈی، ناگر کرنول، وناپٹی، نارائن پیٹ، جوگلامبا گدوال، یدادری، بھونگیر، میدک کے لیے الرٹ جاری کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ہوا کا کم دباؤ جمعے تک طوفان میں تبدیل ہو جائے گا، جو شدید طوفان میں بدل جائے گا اور ہفتے کی شام تک بنگال اور بنگلہ دیش کے اوپر سے گزر جائے گا۔ بتایا گیا ہے کہ جنوب مغربی مانسون بھی سرگرم انداز میں پیش قدمی کر رہا۔ رشوت نہ دیں، معلومات فراہم کریں۔ ACB DG CV آنند نے لوگوں کو ہدایت دی ہے اور مشورہ دیا اور کہا کہ اگر سرکاری اہلکار آپ سے رشوت مانگتے ہیں تو آپ انہیں اطلاع دیں، رشوت نہ دیں، ہمیں معلومات فراہم کریں۔ CV آنند نے ایک پوسٹر کی نقاب کشائی بھی عمل میں لائی ہے اور اس کے لیے ایک ٹول فری نمبر 1064 پر کال کرنے کی بھی ہدایت دی اور کہا کہ ویب سائٹ پر بھی آپ میل کر سکتے ہیں اور شکایت درج کرا سکتے ہیں، لیکن کسی کو رشوت نہ دیں، پولیس کو اطلاع دیں۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے MLC ضمنی انتخاب کے ضمن میں زوم میٹنگ میں شرکت کی۔ اس موقع پر بات کرتے ہوئے انہوں نے پارٹی قائدین کو ہدایت دی ہے کہ وہ گریجویٹ MLC ضمنی انتخاب کو اعزاز کے طور پر لیں اور کانگریس امیدوار تینمار ملانہ کو جتانے کے لیے کام کریں۔ انہوں نے تجویز دی ہے کہ تینوں مشترکہ اضلاع میں کانگریس قائدین کو متحرک ہونا چاہیے۔ وہ کارکنوں اور رہنماؤں کو اس ماہ کی 27 تاریخ کو پولنگ کے لیے تیار کرنا چاہتے ہیں۔ CM نے MLA سے کہا ہے کہ وہ اپنے دائرے اختیار میں آنے والے تمام بوتھس کا دورہ کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ پارٹی کا امیدوار سب سے زیادہ اکثریت سے جیتے۔ اس میٹنگ میں تینوں مشترکہ اضلاع کے MLAs، وزراء، پارلیمنٹ انچارجز، اسمبلی حلقے انچارجز اور کوآرڈینیٹروں نے امیدوار تینمار ملانہ کے ساتھ شرکت کی۔
टास्क फोर्स ने बंजारा हिल्स के इलाके में मुआयना किया और खिलाफ वर्जियां पाई हैं। लेबोनेल फाइन बेकिंग में मोनालिसा डार्क व्हाइट चॉकलेट क्रिस्पियर्स हर एक में एक पैकेट एक्सपायर्ड पाए गए और इसलिए 4,170 रुपए मालियत की अशिया को ज़ायका किया गया। अमेरिकन गार्डन सरका एप्पल साइडर की बोतलें भी दरामदशुदा पाई गई हैं, लेकिन पैकेज पर दरामद कुनिंदा और FSSAI लोगो लाइसेंस की तफसीलात का कोई लेबल नहीं था। इहाते से 4 बोतलें जब्त की गई हैं। फूड हैंडलर्स के मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट की मियाद 15 मार्च को ख़त्म हो गई और इसके बाद उसकी तजदीद नहीं हुई। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी SP को वोट देने का मतलब सिर्फ यादव खानदान को मजबूत करना है। अपना दल कमेरा वादी के कौमी सदर कृष्णा पटेल और पल्लवी पटेल के साथ प्रतापगढ़ जिले में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, अगर आप समाजवादी पार्टी को वोट देते हैं तो आप सिर्फ यादव पार्टी को मजबूत करते हैं। अगर कोई भारतीय जनता पार्टी को रोक सकता है तो उसे सिर्फ पसमानदा दलित मुसलमान ही रोक सकते हैं। जब बुलडोजर चलता है आप कहते हैं कि आपने बीजेपी को हराने के लिए SP को वोट दिया था, लेकिन अब आपके पास PDM का मुतबादिल है। उन्होंने कहा है कि जब बुलडोजर चलता है लोग जेल जाते हैं तो एहतजाज करने और जेल में मिलने सिर्फ ओवैसी के हामी जाते हैं। जब अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के स्पॉन्सर्ड कत्ल पर SP किसी का नाम लेने को तैयार नहीं तो वो वोट की भी मुस्तहक नहीं। ओवैसी ने कहा, हम किसी के गले से मंगलसूत्र छीनने वाले नहीं। वजीर आजम कहते हैं कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। वजीर आजम साहब आपके भी 6 भाई हैं। उन्होंने 39 लोकसभा हलक़े PDM उम्मीदवार डॉक्टर ऋषि पटेल को कामयाब बनाने की अपील की। मारूफ हिंदुस्तानी टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने जिंदगी में मलाल करने या गमगीन रहने के बजाय खुशी का इंतखाब किया है। सानिया मिर्जा के साथ ताहाल करोड़ों पाकिस्तानी दिल धड़कते हैं। सानिया मिर्जा को पाकिस्तान में न सिर्फ बेहद पसंद किया जाता है बल्कि शोएब मलिक की दूसरी शादी के बाद से मारूफ टेनिस स्टार मजीद तवज्जो का मरकज बन गई हैं। याद रहे कि सानिया मिर्जा और पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक का एक बेटा इजहान मिर्जा मलिक भी है। सानिया मिर्जा न सिर्फ एक टेनिस स्टार, मारूफ और मसरूफ कारोबारी शख्सियत हैं बल्कि फुल टाइम माँ भी हैं और वो ये किरदार बखूबी अंजाम दे रही। मुतअद्दिद बैनुल अक़वामी ब्रांड्स की एम्बेसडर सानिया मिर्जा अक्सर औक़ात ही अपने बेटे, भांजी और बहन के हमरा खुशगवार मूड में तस्वीरें शेयर करती नजर आती हैं। गुज़िश्ता दिनों भी साबिक़ टेनिस खिलाड़ी ने नई तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं जिनमें देखा जा सकता है कि सानिया ने अपने घर के बाहर अपने और अपने बेटे के नाम की तख्ती लगाई है। इस पोस्ट में कुछ कुदरती मनाजिर के साथ सानिया ने अपने दोस्तों, बहन और बच्चों के हमरा भी तस्वीरें शेयर की। एक तस्वीर में सानिया मिर्जा के कॉफी मग को देखा गया जिस पर खुश रहने का इंतखाब करें जैसे अल्फाज दर्ज हैं। शहर हैदराबाद में पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ मुकामात पर स्पेशल ड्राइव के तहत ड्रंक एंड ड्राइव प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा और नशे में धुत होकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी के हिस्से के तौर पर शहर हैदराबाद में पुलिस की जानिब से स्पेशल ड्राइव के तहत ड्रंक एंड ड्राइव चेकिंग प्रोग्राम मीर चौक ट्रैफिक पुलिस स्टेशन लिमिट्स चंपापेट रूबरू मंडा यादवा रेड्डी गार्डन के पास किया गया था और गाड़ी चलाने वालों की जाँच की गई और जो नशे में धुत पाए गए उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और उन पर चालानात भी आयद किए गए। वो कर दो अच्छा था నోట్లా పెట్టుకో కొంచెం సేపు నోట్లా పెట్టుకో బయటకు పోపు ఎందుకను నడకి సరే छोड़ दो जी నోట్లా పెట్టుకో కింది కొంచెం తల కింది కొంచెం నోట్లా పెట్టుకో ఓపు అంటే లాభం పడతావు అంటే నీకు ఉస్మానే పోతావా ఇక్కడ పోతావా మరి దానికి
सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। जय जय तेलंगाना गीत को 2 जून यौम तासीस तेलंगाना से रियासत के सरकारी तराने का मौक़िफ़ हासिल हो जाएगा। इसके बाद ये गीत तमाम सरकारी तक़ारीब के दौरान गाया जाएगा। हुकूमत 2 जून को AICC की साबिक़ सदर सोनिया गांधी के ज़रिए रियासती तराना जारी करने का मनसूबा बना रही। अगर इलेक्शन कमीशन एतराज़ नहीं करता है तो हुकूमत की जानिब से परेड ग्राउंड सिकंदराबाद में सरकारी तौर पर यौम तासीस तक़ारीब मुनक़िद करने का भी मनसूबा है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अंदेश्री के लिखे हुए जय जय तेलंगाना गीत में कुछ तब्दीलियां की हैं। यहाँ इस बात का तज़किरा ज़रूरी है कि इस गीत को रियासत की तश्कील से पहले तेलंगाना रियासत की ख्वाहिश में लिखा गया था। अब जैसा कि तेलंगाना रियासत एक हकीकत बन चुकी है, इस गीत में कुछ तब्दीलियां की गई। इस गीत का दौरानिया 1.5 मिनट है। रेवंत रेड्डी हुकूमत ने ऑस्कर अवार्ड याफ्ता म्यूजिक डायरेक्टर MM केरवानी को जय जय तेलंगाना के लिए मौसीकी देने की जिम्मेदारी दी थी। गुज़िश्ता रोज़ MM केरवानी ने इस गीत की CD चीफ मिनिस्टर के हवाले कर दी। 2 जून को तेलंगाना की तश्कील की 10वीं सालगिरह बड़े पैमाने पर मनाई जाएगी। वाज़ेह है कि रियासती काबीना ने 2 जून को मुनक़्क़िद होने वाली तेलंगाना यौम तासीस तक़रीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी सोनिया गांधी को मदऊ करने और जय जय तेलंगाना गीत रिलीज करने का फैसला किया है। 90 सेकंड का गीत रियासत का दर्जा हासिल करने के लिए शोहदा तेलंगाना की कुर्बानियों, तेलंगाना की सकाफत और दीगर पहलुओं को बयान करेगा। ये गीत तेलंगाना के अवाम को वक्फ किया जाएगा। सऊदी एयरलाइंस की 3 परवाजें शमशाबाद राजीव गांधी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे से केयरिंग 845 आज़मीन हज मुक़द्दस शहर मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हो गई हैं। अब तक 35 परवाज़ों में 10,207 हाजी हैदराबाद इम्बारिगेशन पॉइंट से रवाना होकर मदीना मुनव्वरा पहुंच चुके हैं। इस मौके पर हज कमेटी ने मौलाना सूफ़ी खैरुद्दीन क़ादरी को बतौर मेहमान ख़ुसूसी मदऊ किया। हज कमेटी के चेयरमैन खुसरू पाशा, अफजल बियाबानी, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लियाकत हुसैन, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इरफान शरीफ, हज कमेटी का अमला व दीगर मौजूद थे। आज हम हज हौज़ में हैं और हज कमेटी की जानिब से हमको हुज्जाज किराम की रवानगी के लिए हमको यहाँ पर मदऊ किया गया था। आज ये 34वां काफ़िला है और इसकी फ़्लाइट सुबह 9:20 पर शमशाबाद से रवाना हो रही है और इस काफ़िले में 280 आज़मीन रवाना हो रहे हैं। और यहाँ पर जो इंतज़ामात किए गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हुज्जाज किराम के लिए बहुत ही अच्छे इंतज़ामात हैं, जिसके लिए मैं चेयरमैन हज कमेटी जनाब खुसरो पाशा का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और हुकूमत तेलंगाना का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि हमारे हुज्जाज किराम जो यहाँ से मदीना मुनव्वरा जा रहे हैं या मक्के मुअज़्ज़मा जा रहे हैं और इन हुज्जाज किराम के साथ जो खादिमुल हुज्जाज को रवाना किया जा रहा है, तो उनके ताल्लुक़ से चंद तहफ़्फ़ुज़ात जो है ना सामने आ रहे हैं कि वो अपनी खिदमात को पूरे नहीं कर रहे हैं। तो मैं ये मुतालिबा लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतज़ार करने के बजाय रक़्स का मुज़ाहरा करें और मुफ्त का कॉफ़ी पिएं। जी हाँ, इस अनोखे कैफ़े की निशानदही सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज़ में हुई, जहाँ से वायरल होने वाली वीडियो ने देखते ही देखते सबकी तवज्जो हासिल कर ली। फ़ोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप पर किंगडम डायरीज S के नामी पेज से एक वीडियो शेयर की गई है, जिसके मुताबिक जो भी ग्राहक इस कैफ़े का रुख करता है तो पहले उसे रक़्स करना होगा, उसके बाद ही वो कॉफ़ी हासिल कर सकता है। जबकि मज़कूरा वीडियो में मर्द और ख़वातीन हर कोई रिवायती लिबास में मलबूस मुफ्त कॉफ़ी के लिए रक़्स करते दिखाई भी दे रहा। डांस फ्री कॉफ़ी नामी सर्विस वाले इस कैफ़े का इफ्तिताह चंद रोज़ कबल ही किया गया है। ताहम वीडियो वायरल होने के बाद इस अजीब और गरीब सर्विस पर सार्फिन की जानिब से मुतज़ाद तबसरे भी किए जा रहे। इत्तलात के मुताबिक डांस फ्री कॉफ़ी नामी ये सर्विस हालिया बर्गर जॉइंट में जहर मिले खाने के वाक़े के बाद सार्फिन का एतमाद बहाल करने के लिए मुतारिफ की गई है।
جنوبی غزہ شہر میں لوگوں کی بھیڑ پر اسرائیلی فضائی حملے میں تقریباً 10 فلسطینی شہید ہو گئے۔ طبی ذرائع اور عینی شاہدین کے مطابق اسرائیلی ڈرون نے غزہ شہر کے جنوب میں واقع زیتون علاقے میں فلسطینیوں کے ایک ہجوم کو نشانہ بنایا۔ اس حملے میں تقریباً 10 افراد جاں بحق اور 20 زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ در اثنا فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی نے کہا ہے کہ غزہ کے 75% باشندوں کو اجباری نقل مکانی کا سامنا ہے۔ ایجنسی نے لکھا، ہزاروں فلسطینی خاندانوں کے پاس واپس جانے کی کوئی جگہ نہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیلی فوجی کارروائیوں اور بمباری کا بھی مسلسل خطرہ ہے۔ یہاں کی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن چکی ہیں اور غزہ میں کوئی پناہ گاہ نہیں۔ ایجنسی نے کہا ہے کہ غزہ میں ایجنسی کے صحت مراکز کو جنوبی غزہ کی رفح اور کریم شلوم کراسنگ کی بندش کی وجہ سے گزشتہ 10 دنوں میں کوئی طبی سامان نہیں پہنچایا جا سکا۔ ایجنسی کے مطابق 96 طبی مراکز اور UNRWA کے 24 میں سے صرف 7 مراکز کام کر رہے تھے جہاں بنیادی صحت کی نگہداشت کی خدمات فراہم کی جا رہی۔ తంత్ర మంత్ర యంత్ర కి సమ్రాట్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాల్ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।